नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटका यूनियन वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से आज कर्नाटका साहित्य संघ हॉल में आईडी कार्ड वितरण कार्यक्रम किया गया आयोजित। आज रविवार 4 जून को कर्नाटका स्टेट हज कमेटी की ओर से बीदर के जामा मस्जिद में हज यात्रियों के लिए ट्रेनिंग कैंप किया गया आयोजित। महबूबा मुफ्ती को 3 साल बाद जारी किया गया पासपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट में चली लंबी कानूनी लड़ाई। बालासोर एक्सीडेंट पर पहली बार आया रेलवे का बयान। शुरुआती जांच में सिग्नल की खराबी की बात आई सामने। बालासोर रेल हादसे की जांच का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कवच सिस्टम तत्काल लागू करने की मांग। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटका वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राज्य उपाध्यक्ष के मार्गदर्शन में आज 4 जून रविवार को सुबह 10 बजे बीदर शहर के मध्य में स्थित कर्नाटका साहित्य संघ हॉल में आईडी कार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बीदर जिला प्रभारी भवानी सिंह ठाकुर और बीदर जिला इकाई अध्यक्ष टीके गणपति के अलावा भारी संख्या में मीडिया कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर कर्नाटका वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों में उनके आईडी कार्ड वितरण किए गए। इस अवसर पर बीदर जिला प्रभारी भवानी सिंह ठाकुर और बीदर जिला इकाई अध्यक्ष डीके गणपति के अलावा दूसरे जिम्मेदारों ने संबोधन किया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। राज्य मಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಏನು ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಭವಾನಿ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಬರಬೇಕಂದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಚಿರಋಣಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದರಲ್ಲೂ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭವಾನಿ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ಬಸವರಾಜ್ ಕಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಜನ ಏನೋ ಬರೀ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶ ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಲ್ಲೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ವು, ಕೆಲವು ಇನ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ತೋಡಿರ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೆ ತೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಆನಂತರ ಮಾತ್ರ ಜನವರಿ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ ಮುಗೀತಿ ಅಂತಂತಾರೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಈ ಸರಿ ಬೇಗ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಅದನ್ನು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಹಜ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಅಂತಂದ. ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಣ್ತಂದಿರು ಇದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲವೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದೇ ಕೆಡ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೀವಿ ನೋಡಿರಿ, ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಏನಾರ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾರ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗಿರ್ತಾವ, ನಾವೆಲ್ಲವೂ ಕುಲದೋಷ ನೋಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಬಂದಾವ ಅಂದಾಗ ಹಂಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಾಗ ಯಾರು ಇದ್ದವ್ರು ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಡ್ದು ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ತೆಗೆದಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮಾಡೋದಂತ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಓಟಿ ಪವರ್ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ಸದಸ್ಯತ್ವ ಇರಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ನಾಗ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆ ತೆಗೆದು ಒಂಥರ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ರಾಜಕೀಯನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಡೋಣಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರದಿಂದ ಸುಮಾರು ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದದ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾರ ಏನಾರ ನಿಮಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬೀದರ್ ಕೊನೆಯ ಕಿರೀಟ ಇದ್ದಂಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಿರೀಟ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ನಾವೇನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಡಲ್ ಈಗ ಹಿಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗಿವ ಹಳೆ ತಗೋತಂದ್ರೆ ಅಂದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಂದಾರೆ, ಗಣಪತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ, ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ, ಕಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಅವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಯಂಗೆಸ್ಟ್, ಮುದಾಳೆ ಅವರು ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿರಿ, ಏನಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಅದ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ, ಈಗ ಮನೆ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗೆ ಅಣ್ತಂದಿರಿದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಲ್ ಸಂಘ ಮಾಡೋಣ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಡಿ.ಕೆ. ಗಣಪತಿಯವರು ಅಗದಿ ಹೆಂಗಾರ ಏನಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಅದ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರು ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಕಲಬುರಗಿ ಬೀದರ್ ಸಂಘ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಹರಿಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಘ ಹೆಸರು ತರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಒಂದು
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಬಂತು. ಅವಾಗ ನಾನು ಈ ವಿಷಯ ಬೀದರ್ನಾಗ ಯಾಕೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಈಗ ಬೀದರ್ನಿಂದ ಹೋಗಲಿ, ಭಾಳ ಮಂದಿ ಬೀದರ್ ಇದೊಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಇಡೀ 31 ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಭಾಳ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಕಲಬುರಗಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಾಳ ಮಂದಿಗೆ ಅಂತಲಿತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬೀದರ್ ಅಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಅವ, ಭಾಳ ಹಿಂದುಳಿದದ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೆಲ್ ಅವ್ರು ಹಳ್ಳಿ ಟೈಪ್ ಬೀದರ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗವರು ಅಂದಂಗಿತ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬಂದಾಗೆ ಒಂಥರ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಬೀದರ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಅಂತಿದ್ದೆವು, ಏನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದಪ್ಪ, ಅಲ್ಲೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಂಗೆ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಕಲಬುರಗಿ ಮಾಡಿದೆವು. ಹಂಗೆ ಒಂದು ಬೀದರ್ನಾಗ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿದೆವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ 31 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ತೋರಿಸೋಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸಭೆ ಕರೆಯೋಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅದ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿ, ಈಗೇನು ಹೊಸ ಬಾಡಿ ಬಂದದ ಈ ಬಾಡಿಯವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇರ್ತಿರ್ತಾವೆ ಏನಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಇನ್ನೂ ಈ ಸಂಘ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. आज रविवार 4 जून को कर्नाटका स्टेट हज कमेटी और ऑल इंडिया हज ट्रेनिंग फोरम की ओर से कर्नाटका के हज मिनिस्टर रहीम खान के नेतृत्व में बीदर की जामा मस्जिद में हज यात्रियों के लिए ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चला, जिसमें हज ट्रेनर मोहम्मद एजाज रिटायर्ड KS अफसर ने सभी हज यात्रियों को ट्रेनिंग दी। इस अवसर पर कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन रफुद्दीन कचेरीवाला और बीदर की प्रसिद्ध संगठन खादिमुल हुज्जाज कमेटी, जो पिछले कई वर्षों से हाजियों की सेवा करती आ रही है, इसके सेक्रेटरी मंसूर अहमद कादरी और इसके सभी अधिकारियों के अलावा दूसरे उपस्थित रहे। इस अवसर पर खादिमुल हुज्जाज कमेटी की ओर से रफुद्दीन कचेरीवाला को शॉल और फूलमाला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। इस ट्रेनिंग कैंप में महिला हज यात्रियों के लिए अलग से व्यवस्था की गई थी। इस अवसर पर कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन रफुद्दीन कचेरीवाला ने मीडिया से बात करते हुए इस ट्रेनिंग कैंप के संबंध में विस्तार से बात की। इस अवसर पर KP न्यूज के संवाददाता असलम खान ने रफुद्दीन कचेरीवाला से प्रश्न किया कि हज मंत्री बीदर से हैं और हज कमेटी के चेयरमैन भी बीदर से, तो क्या इस बार बीदर के लिए हज हाउस बनाना तय है? इस पर रफुद्दीन कचेरीवाला ने कहा कि बीदर में हज हाउस के लिए जगह देखी गई है और यहाँ पर जल्द ही हज हाउस बनेगा। KP न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। आज बीदर जामे मस्जिद में ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है। कर्नाटक स्टेट हज कमेटी और हमारे ऑल इंडिया हज ट्रेनिंग फोरम की तरफ से आज बीदर के जामे मस्जिद में वह एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे जनाब रहीम खान साहब मिनिस्टर माइनॉरिटी म्यूनसिपाल्टी और हज के जो मिनिस्टर हैं उनकी सदारत में आज इस दिन एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है। क्योंकि ये जो ट्रेनिंग देने वाले हैं जनाब एजाज साहब रिटायर्ड KS ऑफिसर है, 20 साल से ये हाजियों की ट्रेनिंग देते हैं और सऊदी अरब जाके वहाँ के जो हालात हैं उस हालात को वहाँ के मद्देनज़र रखते हुए यहाँ के हाजियों को उन्होंने 2 दिन का परफेक्ट ट्रेनिंग देते हैं, जिससे हाजियों को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचता है। तो ये हमारे जो बीदर के हाजी थे लगभग 350, ये पिछले कुछ दिन पहले गुलबर्गा में ट्रेनिंग ले चुके थे। फिर भी रहीम खान साहब का इन्विटेशन रहने की वजह से ये आज ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है और मुझे भी उनकी बार बार कोशिश थी कि चेयरमैन साहब आप भी अटेंड होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं भी बहुत कम वक्त निकाल करके आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आया और यहाँ के जो अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के तमाम सेक्रेटरी को, उनकी कमेटी के लोगों को भी इस बात की मुबारकबाद दिया। दूसरा, इंशाल्लाह इस साल 2023 का आज होने जा रहा है। लगभग हमारे पास 8,172 एप्लीकेशन आए थे कर्नाटक में। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP की अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को 3 साल बाद 10 वर्ष की वैधता वाला पासपोर्ट जारी किया गया है। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद महबूबा को पासपोर्ट मिल गया है। उनके पासपोर्ट की वैधता 2019 में समाप्त हो गई थी और वह तभी से इसके नवीकरण की मांग कर रही थी। महबूबा को ऐसे समय में पासपोर्ट जारी किया गया है जब 2 दिन बाद जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में उनकी बेटी इल्तिजा की याचिका पर सुनवाई होनी है, जिसमें उन्होंने खुद को देश विशिष्ट पासपोर्ट देने के पासपोर्ट कार्यालय के फैसले को चुनौती दी है। महबूबा को दिए पासपोर्ट की वैधता 1 जून 2023 से 31 मई 2033 तक है। बालासुर हादसे पर पहली बार रेलवे बोर्ड का बयान सामने आया है। शुरुआती जांच में सिग्नल की खराबी की बात सामने आई है। हम जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। सिग्नल में गड़बड़ी की जांच जारी है।
शुरुआती जांच के मुताबिक हो सकता है कि कुछ समस्या सिग्नल के साथ रही हो। हम अभी भी रेलवे सुरक्षा आयुक्त की विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ कोरमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई। ट्रेन की रफ्तार करीब 128 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि रेल मंत्री पिछले 36 घंटे से मौके पर मौजूद हैं। वहां से वो हिल नहीं रहे हैं। वहां रिस्टोरेशन और इन्वेस्टिगेशन का काम हो रहा है। रेलवे बोर्ड की सदस्य जया वर्मा सिन्हा ने कहा कि रेलवे ने हादसे के बाद सबसे पहले राहत और बचाव कार्य किया, उसके बाद मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। भानागा स्टेशन पर 4 लाइनें हैं, इनमें 2 मेन लाइन हैं। लूप लाइन पर एक मालगाड़ी थी। स्टेशन पर ड्राइवर को ग्रीन सिग्नल मिला था। दोनों गाड़ियां अपने पूरे गति पर चल रही थी। प्रारंभिक जांच में लग रहा है कि सिग्नल में गड़बड़ी हुई है। घटना की चपेट में सिर्फ कोरमंडल आई थी। बालासोर में हुई भीषण रेल हादसे की जांच का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक वकील जिनका नाम विशाल तिवारी है, उन्होंने इस मामले को लेकर याचिका दाखिल की है। इस याचिका में दुर्घटना से बचाने वाले कवच सिस्टम को यथाशीघ्र लागू करने की मांग की गई है। साथ ही पूर्व जज की अध्यक्षता में इस मामले की जांच बिठाने की भी मांग की गई है। इसके अलावा रेल सुरक्षा को लेकर भी पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेषज्ञ कमेटी बनाने की मांग की है। बता दें कि ओडिशा के बालासोर में कोरमंडल एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने से अब तक 228 यात्रियों की जान जा चुकी है। वहीं 1200 से ज्यादा लोग घायल हैं। ट्रेन दुर्घटना में घायलों के रेस्क्यू का काम लगभग पूरा हो चुका है। मृतकों के शव को उनके परिजनों को सौंपा जा रहा है। पीएम मोदी भी कल बालासोर में घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा ट्रेन दुर्घटना को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775।
8495875175। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए ये पिछले कुछ दिन पहले गुलबर्गा में ट्रेनिंग ले चुके थे, फिर भी रहीम खान साहब का इनविटेशन रहने की वजह से ये आज ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है। और मुझे भी उनकी बार बार कोशिश थी कि चेयरमैन साहब आप भी अटेंड होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं भी बहुत कम वक्त निकाल करके आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आया और यहाँ के जो अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के तमाम सेक्रेटरी को, उनकी कमेटी के लोगों को भी इस बात की मुबारकबाद दिया। दूसरा, इंशाल्लाह इस साल 2023 का आज होने जा रहा है। लगभग हमारे पास 8,172 एप्लीकेशन आए थे कर्नाटक में। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को 3 साल बाद 10 वर्ष की वैधता वाला पासपोर्ट जारी किया गया है। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद महबूबा को पासपोर्ट मिल गया है। उनके पासपोर्ट की वैधता 2019 में समाप्त हो गई थी और वह तभी से इसके नवीकरण की मांग कर रही थी। महबूबा को ऐसे समय में पासपोर्ट जारी किया गया है जब 2 दिन बाद जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में उनकी बेटी इल्तिजा की याचिका पर सुनवाई होनी है, जिसमें उन्होंने खुद को देश विशिष्ट पासपोर्ट देने के पासपोर्ट कार्यालय के फैसले को चुनौती दी है। महबूबा को दिए पासपोर्ट की वैधता 1 जून 2023 से 31 मई 2033 तक है। बालासुर हादसे पर पहली बार रेलवे बोर्ड का बयान सामने आया है। शुरुआती जांच में सिग्नल की खराबी की बात सामने आई है। हम जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। सिग्नल में गड़बड़ी की जांच जारी है। शुरुआती जांच के मुताबिक हो सकता है कि कुछ समस्या सिग्नल के साथ रही हो। हम अभी भी रेलवे सुरक्षा आयुक्त की विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ कोरमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई। ट्रेन की रफ्तार करीब 128 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि रेल मंत्री पिछले 36 घंटे से मौके पर मौजूद हैं। वहां से वो हिल नहीं रहे हैं। वहां रिस्टोरेशन और इन्वेस्टिगेशन का काम हो रहा है। रेलवे बोर्ड की सदस्य जया वर्मा सिन्हा ने कहा कि रेलवे ने हादसे के बाद सबसे पहले राहत और बचाव कार्य किया, उसके बाद मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। बहानागा स्टेशन पर 4 लाइनें हैं। इनमें 2 मेन लाइन हैं। लूप लाइन पर 1 मालगाड़ी थी। स्टेशन पर ड्राइवर को ग्रीन सिग्नल मिला था। दोनों गाड़ियां अपने पूरे गति पर चल रही थी। प्रारंभिक जांच में लग रहा है कि सिग्नल में गड़बड़ी हुई है। घटना की चपेट में सिर्फ कोरमंडल आई थी। बालासोर में हुई भीषण रेल हादसे की जांच का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक वकील जिनका नाम विशाल तिवारी है, उन्होंने इस मामले को लेकर याचिका दाखिल की है। इस याचिका में दुर्घटना से बचाने वाले कवच सिस्टम को यथाशीघ्र लागू करने की मांग की गई है। साथ ही पूर्व जज की अध्यक्षता में इस मामले की जांच बिठाने की भी मांग की गई है। इसके अलावा रेल सुरक्षा को लेकर भी पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेषज्ञ कमेटी बनाने की मांग की है। बता दें कि ओडिशा के बालासोर में कोरमंडल एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने से अब तक 228 यात्रियों की जान जा चुकी है। वहीं 1200 से ज्यादा लोग घायल हैं। ट्रेन दुर्घटना में घायलों के रेस्क्यू का काम लगभग पूरा हो चुका है। मृतकों के शव को उनके परिजनों को सौंपा जा रहा है। पीएम मोदी भी कल बालासोर में घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा ट्रेन दुर्घटना को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175।